Success Mantra. We shape future. Hello everyone, I am Shashank Sache and welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So, this news analysis will be completely based for the law entrance examination and it will be backed by some questionnaires also in the last of the session. So, first of all, we will discuss what exactly today in news. So, there are five important aspects that you need to learn for the today's The Hindu News Analysis video, and that will be important for your CLAT and other law entrances examinations like ALAT, Symbiosis, DULLB, MHSET, and other law entrance examination. These are important, and reading the Hindu is itself an important aspect. First of all, the monkeypox. So the question arises, you must have realized why we are reading this monkeypox. So look, the first question arises, we are reading this monkeypox because after the COVID-19 outbreak, that after the COVID-19 pandemic, the second thing which is going in the today's world is monkeypox, and India has now entered in this race because two of the peoples, one from Delhi and another from the Kerala, that was the first case, have been infected for this from this monkeypox virus. Second thing is fiberization. Fiberization. This topic is basically related to the 5G spectrum case. 5G spectrum. 5G spectrum case. Third one is the World Championship. World Championship recently in US World Championship have been concluded and India backed its second medal. Second medal, yes, you heard right. Second medal India has backed, and we'll get into the detail in further analysis. And this year, Neeraj Chopra has bagged a silver medal in javelin. Right. Fourth one is the National Film Awards. National Film Awards will read into the National Film Awards. It's important facts that you can counter in your examinations. Fifth one, the MC12 conference. This is the Ministerial Conference 12th. Ministerial Conference 12th, which is basically related to the WTO, that is the World Trade Organization, and TRIPS. So we'll get into the detail furthermore in this news analysis section. So this a recap of monkeypox outbreak. This is published in the Hindu. You must read it for your comprehension part, because you can counter this kind of topics in your English comprehension as well, apart from the GK. So this monkeypox outbreak can be expected soon in the worldwide if the necessary precautions haven't been taken, because इस वायरस का कोई भी origin और कोई भी क्योर अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया. There is no kind of such thing that can be cured easily by this. Any medicine have been not discovered yet regarding this monkeypox outbreak. So this monkeypox has been declared as a global health emergency, and that's why we are reading this. The World Health Organization has declared monkeypox as a global health organization, has declared as a global health emergency. ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. सेकंड वन इज दैट दिस वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज बेसिकली वो डिजीज होते हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं. राइट, द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन. इसको मंकी पॉक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट्स अ पॉक्स लाइक इलनेस अमंग मंकीज एंड इट इज वाइड स्प्रेड इन नाइजीरिया. ये नाइजीरिया में वाइड स्प्रेड है और एंडेमिक है वहां पर. We'll get into the details of the three important terms, that is the endemic, pandemic, and epidemic also in the further details, in further slides also. The first, it is to be noted that the first case, जो first case है हमारा monkey pox का, वो 1958 में रिपोर्ट किया गया था, and the first report was made in Denmark in Statens Serum Institute. तो एक स्टैटन सीरम इंस्टीट्यूट था, वहां पे मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1958 में, और ये जो केस है वो आपका एनिमल में मिला था. राइट, एनिमल में मिला था. और फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में लिया गया था, और वो किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहला ह्यूमन केस था, और पहला एनिमल केस कब कहाँ था? डेनमार्क में, स्टैटन सीरम इंस्टीट्यूट इन 1958. Another one is that it is a DNA virus. It is to be noted, and it's a fact that must be noted. And coming down, what is the full form of DNA? Like what DNA exactly stand for, and RNA. Another one is that it belongs to a variola family. This monkeypox belongs to a variola family in line with the smallpox. Like जिस जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता है, उसी फैमिली से
ये आपका जो मंकी पॉक्स है ये भी बिलोंग करता है। सो द सिमिलैरिटी दैट कैन बी सीन इन द फैमिली ऑफ वायरसेस, दिस बिलोंग्स टू अ जीनस फैमिली। दिस मंकी पॉक्स जो है वो एक जीनस फैमिली से बिलोंग करता है और उस फैमिली का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस, राइट? This is too much detail for the CLAT and any other law entrance examination, but you can expect the question, like surprises are always there. So you can expect a question like this, this like which genus family they belong. So you can go for the orthopox virus. Like I was telling in the starting, that its only natural source is unknown, natural host. That from where it started, it is unknown today. पता नहीं है कहाँ से आया वायरस, इसलिए वायरस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होल्ड करता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इफ आउटब्रेक हैपेंस एट लार्ज। और कोई वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल यहाँ पे चाहिए, अब दिख रहा होगा, नो वैक्सीन डेवलप्ड सो फार फॉर दिस, फॉर द क्योर ऑफ दिस मंकी पॉक्स वायरस, राइट? तो कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो इट बिकम्स अ इमीडिएट थ्रेट फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल फोरम, and that's why World Health Organization has declared it as a global health emergency, right? Second thing is that declaring public health emergency or global health emergency, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, व्हाट इज दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, क्या इफेक्ट आएगा इस पे? तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है बेसिकली, ताकि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं, स्टेट्स हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके बीच में एक कनंड्रम बिठाया जा सके, एक कंसिस्टेंसी लाया जा सके, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सके सभी स्टेट्स के बीच में, ताकि अगर कुछ इन केस ऑफ डिसहैपनिंग होती है या मिसहैपन होता है, तो दे विल एबल टू क्योर, और हम इसे रोक सकें। तो इसलिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया है एट दिस अर्लीस्ट स्टेज कि हाँ, इसको क्योर किया जा सके, और जैसा कोविड-19 का जितना लॉस था और उसमें जितने रिपरकशंस आए वो दोबारा ना हो। सिंस 2009 सेवेंथ टाइम, दिस इज द सेवेंथ टाइम, ये सातवीं बार है इंक्लूडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दिस इज द सेवेंथ टाइम सिंस, कब से? 2009 से। जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिक्लेयरिंग दिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इज दैट दिस इज डन इन ऑर्डर टू मेक एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अमंग द कंट्रीज एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा इशू ना आ जाए एकदम से कि हाँ, हम हाउ टू कंट्रोल दिस, ये समझ में ही नहीं आए उस टाइम पे। सो इसलिए पहले से ही एक इंटरनेशनल फोरम पे एक इशू को डाल दिया जाता है कि हाँ, इन केस अगर कोई इशू आता है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। जो इसका मंकी पॉक्स जो है आपका, उसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था वो 2003 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। और ये इस कंट्री का एंडेमिक है? नाइजीरिया। ठीक है? अब आता है जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये क्या होता है? तीनों बेसिकली इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है? इन्हें इसी ऑर्डर में पढ़ना है। लाइक एंडेमिक होता है पहले, उसके बाद एपिडेमिक, उसके बाद पेंडेमिक। एंडेमिक इज बेसिकली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। लाइक एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलेगा वो आपको, वो ग्लोबल नहीं मिलेगा, उस स्टेट में भी ऑल थ्रू नहीं मिलेगा। लाइक एक अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे हम मंकी पॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो ये नाइजीरिया का एंडेमिक है, यानी ये नाइजीरियन से ही बेसिकली बिलोंग करता है, वहां के लोगों में और उस एरिया में मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज एंडेमिक। लाइक बेसिकली अगर हम इसको अगर उसका एक वेन डायग्राम बनाए, तो सबसे पहले एंडेमिक आता है, ये जो एक छोटा सा स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है कोई लोग, और इस कंट्री में ये जो पोजीशन है, यहाँ पर ये चीज एंडेमिक है, राइट? यहाँ पर ये आपका एंडेमिक है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। सपोज दिस इज नाइजीरिया, और यहाँ पर एंडेमिक है आपका मंकी पॉक्स, राइट? अब आता है इसका सेकंड एस्पेक्ट, which is epidemic. Epidemic basically a large number of people or animals suffering, from same disease at the same time. अब जैसे होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एंडेमिक में हमने क्या किया कि एक स्मॉल ग्रुप, राइट? ठीक है, स्मॉल ग्रुप, सेम स्मॉल पीपल एंड स्मॉल क्लस्टर ऑफ पीपल। लेकिन एपिडेमिक में एक थोड़ा सा स्पेस आपका बढ़ जाता है। इसमें आपको क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा लोग होंगे इस टाइम एंडेमिक से, और एरिया जो है उस डिजीज की वो भी बढ़ जाएगी, और सेम टाइम में उसी डिजीज का फैलना अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर एनिमल्स में, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? एपिडेमिक।
अब आता है पैंडेमिक। पैंडेमिक इज अ ग्लोबल एपिडेमिक, समझ लो इन अ मोस्ट लेमन टर्म अगर हम समझें इसको, तो एपिडेमिक का बड़ा भाई होता है पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 था, व्हाट वाज़ कोविड-19? कोविड-19 वाज़ अ पैंडेमिक, ये ग्लोबली था, पूरे ग्लोब के थ्रू ये फैला हुआ था। किसी न किसी कंट्री में, किसी न किसी पार्ट ऑफ द स्टेट में, किसी न किसी अर्थ के किसी भी कोने में जाओ, इसका एक ना एक एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट वाज़ अ पैंडेमिक। एंड एपिडेमिक थोड़ा उससे कम, एंडेमिक थोड़ा और उससे कम। लाइक आपका ज्योग्राफिकल जो एरिया है ना, वो कम होते चला जाएगा। तो हियर इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। इट कैन बी इजिली लर्न फ्रॉम दिस नाउ, आई गेस। So the what is the second news? Second news is about the 5G. So look, country is developing, right? तो अब 4G, 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G की बात चल रही है, इसके ऑप्शंस की बात चल रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों प्रॉब्लम आएँगे? तो भाई देखो, अब कोई भी डेवलपमेंट करोगे तो उसके लिए चैलेंजेस आएँगे, इश्यूज़ होंगे, करप्शंस के इश्यूज़ होंगे, ना जाने इसके रिगार्डिंग कितने इश्यूज़ होंगे। आपने 2G स्पेक्ट्रम केस का भी नाम सुना होगा। सो अब ये 5G आ रहा है तो इसके अहेड भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस, तो ऐसे बहुत चैलेंजेस अहेड होते हैं, ठीक है? तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। विल गेट इंटू द हार्डकोर फैक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, बिकॉज़ एनालिसिस इज़ particularly for the exam perspective, not for the perspective of like getting into the philosophy of that very particular thing. This is not our job as of now for the law entrance examination. We need to focus on the hardcore facts. देखिए, जितना आप लोग एक कॉमन एक सिंगल पाथ पे चलेंगे, ज्यादा भटकेंगे नहीं, तो इट विल बी इजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेरे भाई एग्जाम में। तो अब आता है टॉपिक 5G चैलेंजेस वे अहेड। तो क्या है इसका वे अहेड? व्हाट इज दिस 5G चैलेंजेस? तो इस टॉपिक का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अभी जस्ट, ठीक है? तो इस ओवरव्यू को जानने के बाद दो टर्म है जो इस आर्टिकल में, जो आप ये देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो पार्ट आया है द हिंदू का, आप उसको अगर जाके देखेंगे तो उसमें दो टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? दिस कैन बी आस्क्ड इन अ वन लाइनर पर्सपेक्टिव इजिली। व्हाट इज फाइबराइजेशन एंड व्हाट इज बैकहॉल सपोर्ट? Look, fiberization क्या होता है? It is basically the process of connecting radio towers with each other via optical fiber cables. जो जैसे लेट सपोज ये रेडियो टावर है, ठीक है? ये एक रेडियो टावर है, ये एक रेडियो टावर है, ठीक है? पार्डन माय ड्राइंग। ये एक रेडियो टावर है। लुक, ये टावर ए, टावर बी एंड टावर सी, ये 3 टावर्स हैं, राइट? अब इन 3 टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर से जो कनेक्ट किया जाता है, इसी को हम कहते हैं फाइबराइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फाइबराइजेशन। तो आई गेस कि आपको पता चल गया होगा व्हाट इज फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ रेडियो टावर्स विद वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इज नोन एज फाइबराइजेशन। अब आता है बैक हॉल सपोर्ट क्या होता है? component of larger transport that is responsible for carrying data across the network। ये जो टावर हमने कनेक्ट किया है ऑप्टिकल फाइबर से, राइट? तो इसके थ्रू जो डाटा आप ट्रांसमिट करोगे, उस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक और सपोर्ट की जरूरत होती है, विच इज द बैकहॉल सपोर्ट, जो एक लार्जर ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करता है आपका। तो आपके लिए दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक है आपका फाइबराइजेशन एंड दूसरा है आपका बैकहॉल सपोर्ट। थर्ड वन इज द स्टोरी सो फार। अभी तक की कहानी क्या है इसकी? तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग, इंडिया प्रिपेयर ऑब्वियसली। देखो, जब कोई भी 5G चैनल या 5G आप नेटवर्क लॉन्च करते हो तो उसकी ऑक्शन होती है, लाइक हु विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है? इसका बेसिकली आपको एक वो निकलता है, ऑक्शन होती है, जो टेंडर भरते हैं सब कोई, और फिर भाई जिसको मिलता है बेस्ट प्राइस विन करता है। तो इस ऑक्शन में अबाउट 72 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ एयरवेव्स का ऑक्शन है। ये 5G सर्विस इन द कंट्री को रोल आउट करेगा ये, ठीक है? द वर्क ऑफ कनेक्टिंग द टावर्स कुड प्रूव टू अ ह्यूज चैलेंज फॉर द कंट्री। इस पॉइंट पे ये पूरा आर्टिकल आपका बेस्ड है कि ये किस टाइप के चैलेंजेस को लेके आएगा। तो आपका चैलेंजेस इकोनॉमिक भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सोशल भी होगा, राइट? मेरा आपसे एक वो रिक्वेस्ट है कि आप एक बार 2G स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें, जानिए व्हाट एग्जैक्टली वाज द 2G स्पेक्ट्रम केस। जस्ट अ स्मॉल स्निपेट यू शुड नो, like for a common perspective, common understanding, you should know to transition into 5G India needs at least 16 times, मतलब अभी जितना फाइबर है हमारे पास उससे 16 टाइम्स फाइबर की हमारी रिक्वायरमेंट है, विच इज ये एक एस्टिमेट है, जो कि एक STL है, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि इसी सेक्टर में, ऑप्टिकल फाइबर्स के सेक्टर में वो काम करते हैं। तो उन लोगों का एस्टिमेशन है कि अभी जितना हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स है उसका 16 टाइम्स
हमें रिक्वायर्ड होगा। सो इस टॉपिक में बेसिकली आपको ये जानना है, आपको पढ़ना ज़रूर है ये टॉपिक। दिस कैन बी गो फॉर योर पैराग्राफ फॉर द इंग्लिश, एंड इफ कम फॉर द जीके सेक्शन देन दे कैन ईज़िली गो फॉर व्हाट इज़ फाइबराइजेशन, बैक हॉल सपोर्ट क्या होता है, हाउ मच रोल आउट कितना होगा 5G सर्विस के लिए, तो 72 गीगाहर्ट्ज़ कितना है, कितना रिक्वायरमेंट होगी, तो 16 टाइम्स मोर ऑफ द करंट। नाउ द थर्ड न्यूज़ इज़ दैट it is very important and a proud moment for all of us is the 22nd वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ। इसमें हमारे जो नीरज चोपड़ा साहब हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसमें, एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड एज इंडियन बिकॉज हम लोगों ने एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एंड टू बी नोटेड एज एक हमारे और एथलीट हैं, उनका उनको 10th पोजीशन आया है इस पूरे राउंड अप में। तो इस टॉपिक को हमें कितना पढ़ना है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप था आपका, ये 18th चैंपियनशिप था। ये इसका 18th एडिशन का चैंपियनशिप था, राइट? ये आपका 18th एडिशन था। तो 18th एडिशन था ये, ठीक है? और ये कहाँ हुआ था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द वेन्यू, एनी स्पोर्ट इज़ गोइंग ऑन, इफ एनी नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट इज़ गोइंग ऑन, यू शुड बी अवेयर अबाउट द कितने लाइक व्हिच नंबर इट इज़। तो 18th नंबर कहाँ हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ओरेगॉन में। इसका जो मेन वेन्यू है वो है हार्वर्ड फील्ड इन यूजीन, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसका मोटो क्या था? फ़ील द ग्लोरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फ़ील द ग्लोरी। ग्लोरी फ़ील करना है ना? ग्लोरी फ़ील करना, फ़ील किया भी हमने, सिल्वर मेडल लेके आए हैं हम लोग। 180 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया इसमें। इट इज़ बाईएनियल। बाईएनियल क्या होता है? बाईएनियल होता है 2 साल में जो एक बार हो, 2 या फिर 2 साल के गैप पर होते हैं। तो ये जो था आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये 2 साल में एक बार होता है। तो ये बाईएनियल है और 18th एडिशन इस बार हुआ है। और मेडल टैली की बात की जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल बैग किया है जैवलिन में, राइट? जैवलिन जो आपका होता है भाला फेंकने वाला, इससे पहले भी इन्होंने गोल्ड लाया था एक बार, वो दूसरे चैंपियनशिप की बात है। लेकिन ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो इन्हें सिल्वर मेडल मिला है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो क्यों क्रिएट की है हिस्ट्री? इंडिया को दूसरा मेडल मिला है ये अभी तक का। इन सच अ हार्डकोर चैंपियनशिप जो होती हैं, वर्ल्ड एथलीट चैंपियन, ये दूसरा मेडल है। तो क्वेश्चन तो आया होगा सर फर्स्ट मेडल कौन लेके आया था? तो फर्स्ट मेडल लेके आई थी अंजू बॉबी जॉर्ज 2003। ये कौन-सा है? 2022। पिछली बार कहाँ से था? 2003। इस बार कौन है? नीरज चोपड़ा। पिछली बार कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ये पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और इस बार कौन-सी है? यूएस में हुआ था। पिछली बार 2003 में जो जीता था वो कहाँ था? पेरिस में था उसका वेन्यू, ठीक है? और वो लॉन्ग जंपर थी। और ये कौन है? ये है आपके जैवलिन थ्रोवर। वो लॉन्ग जंपर थी, ये हैं आपके जैवलिन थ्रोवर। राइट। और उसके बाद है कि ये इस बार सिल्वर मेडल लेके आए थे, हम लाए हम लोग। और फिर पिछली बार कौन-सा मेडल लेके आए थे 2003 में जब अंजू बॉबी जॉर्ज गई थी पार्टिसिपेट करने, तो उस टाइम हम लोग लेके आए थे ब्रॉन्ज मेडल, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके क्लैट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक। सो सेकंड टॉपिक है आपका नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स। इस बार दिल्ली में दिए गए हैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड, ये याद रखना है आपको। इस बार जो नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ये दिल्ली में दिए गए हैं और ये 68th नेशनल अवार्ड्स हैं, 68 नेशनल अवार्ड्स हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपको सूर्या को और सोरारी सोरारी पोट्रू एक साउथ इंडियन मूवी है। सूर्या एक्टर हैं, इनको मिला है ये अवार्ड, राइट, फॉर दिस मूवी। एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी लाइक साउथ इंडियन मूवीज़ आर बीइंग प्रमोटेड एट सच अ लार्ज लेवल। एंड अजय देवगन को तानाजी के लिए इनको मिली थी और ये नेशनल अवार्ड, और 68th नेशनल अवार्ड मिला है इस बार। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बालामुरली, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और ये भी इसी मूवी के लिए मिला है जिस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, वो है सोराराई पोट्रू, ठीक है? अब जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जो आपके किसी भी एलेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, डीयू में पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, लाइक व्हिच स्टेट हैज़ वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट? बॉम्बे नहीं है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है? मध्य प्रदेश है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। और उत्तराखंड को सर्टिफिकेट एंड यूपी को भी सर्टिफिकेट मिला है, एक स्पेशल मेंशन किया गया है इनको भी। तो हो सकता है आने वाले समय में इनमें से कोई एक स्टेट हो जो कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बने, और बट इस बार तो मध्य प्रदेश को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, बढ़िया बात है।
और नेशनल फ़िल्म अवार्ड जो है 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। जैसा कि मैं बता रहा था दिल्ली में मिला है इस बार 22 जुलाई को ये इवेंट हुआ था। तो ये न्यूज़ आपके किसी भी एग्ज़ाम वन लाइनर ले लो आप, पैराग्राफ बेस्ड एग्ज़ाम ले लो जैसे क्लैट हो गया, एमएच सेट हो गया, वन लाइनर में, डीयू हो गया, तो दे कैन ईज़िली गो फॉर कि व्हिच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट मोस्ट फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट, तो मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड को एक स्पेशल मेंशन मिला है। 68th नेशनल फ़िल्म अवार्ड था ये, राइट? और फिर मोरओवर ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। और कब स्टार्ट हुआ था? 1954। और सोरारी पोटरू याद रखिए आप, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हीं दोनों को, इन्हीं मूवीज़ को ही मिला है, सोरारी पोटरू को। और जो एक्टर है वो हमारे सूर्या हैं और एक्ट्रेस हैं उसकी अपर्णा बाला मुरली हैं। राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है MC-12। MC-12 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। दिस आर्टिकल यू शुड रीड दिस, यू शुड मस्ट रीड दिस वंस, इट विल श्योरली गिव यू एन ओपन एंड ब्रॉड एस्पेक्ट अबाउट द वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कैसे पता चलेगा? लोग जब ये आप न्यूज़ देखते हैं, तो इस न्यूज़ में आप जब पढ़िएगा, इसको डिटेल में देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। लाइक जो MC-12 है उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th, ठीक है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th जो इस बार हो रहा है, इसमें अबाउट 100 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं वर्ल्ड WTO में, ठीक है? और ये ट्रिप्स का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे बताऊँगा व्हाट एक्ज़ैक्टली ट्रिप्स इज़, राइट? तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रिप्स के बारे में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के बारे में। बट प्रायर टू दिस विल गेट इंटू द टॉपिक, लाइक व्हाट एक्चुअली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर में जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक एक बहुत ही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चेंज आया है। लाइक अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज ले लीजिए आप, या फिर आप ले लीजिए आपका रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, यार व्हिच इज़ डेवलपिंग बिकॉज़ रशिया हैज़ साइन्ड द ग्रेन एग्रीमेंट विद द EU एंड टर्की। आपको पढ़ना है उसके बारे में, आप ज़रूर पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि ये मिरर एग्रीमेंट जो था ये किसके बीच हुआ है एंड हाउ दिस विल इम्पैक्ट, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। लाइक टर्की इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यूएन और यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, बिकॉज ये डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। तो एक ग्लोबल ऑर्डर में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि देखिए दो तरह के नेशंस होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका डेवलप्ड नेशन, एक होता है डेवलप्ड नेशन और एक होता है डेवलपिंग नेशन, राइट? तो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में डिफरेंस होता है कि एक डेवलप कर चुका है एंड इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ, लाइक वी आर डेवलपिंग नेशन, राइट? तो WTO डिक्लेयर नहीं करता है किसी भी नेशन को कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। इट इज़ कंप्लीटली अप टू द कंट्री, लाइक कि हाँ, इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट तो आप डेवलप्ड खुद को डिक्लेयर करिए, नहीं तो आप डेवलपिंग खुद को डिक्लेयर करिए। तो इट्स बेटर भी आप डेवलपिंग रहें, बिकॉज़ इट विल गिव यू अ चांस टू प्रोग्रेस, आप स्टक नहीं होंगे एक जगह पे जाके, ठीक है? तो डेवलपिंग नेशन इसमें क्या हुआ था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक इंडिया एंड अदर, लाइक साउथ अफ्रीका भी इसमें एक पॉइंट आया है एक पॉइंट पर। तो इनके डिस्कशन में क्या हुआ है कि दे वर आस्किंग, लाइक कि जो कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ ड्रग्स की बात की गई है इसमें। कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ ड्रग्स बेसिकली ये है कि जब आपका कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था, तो बहुत सारी कंट्रीज़, कुछ ऐसे डेवलप्ड नेशंस थे, उन्होंने अपना एक फ़ॉर्मूला तैयार कर लिया था, बट दे वर नॉट रेडी टू थ्रो आउट इन द मार्केट, बिकॉज़ क्योंकि देखो अब वो लोग पेटेंट कराएँगे जो कि ट्रिप्स के अंदर डील होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही पार्ट है वो। तो जो वो पेटेंट कराते हैं वो लोग, तो पेटेंट कराने से उसका कमर्शियलाइज़ेशन होगा और वो पैसे कमाएँगे। बट मोरालिटी के ग्राउंड पे देखे जाए कि जब वर्ल्ड में एक पैंडेमिक है, जिसमें खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन भी कितनी बार उस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है, तो यू शुड शो सम मोरालिटी। तो चलिए अब ठीक है, पैसे कमाने की बात है तो वो है ही। तो कुछ कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया है, वो लोग पुश कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि लाइक यस वी वांट कि इसको आप कमर्शियलाइज़ेशन छोड़ो, इसको आप मार्केट में पुश करिए, ताकि सभी लोगों को, सभी कंट्रीज़ को इक्वालिटी के हिसाब से फ़ॉर्मूला मिल सके और वो अपने लोगों को ट्रीट कर सके। आप अब इतने हार्ड टाइम पे भी पैसे के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो हाउ विल द वर्ल्ड ग्रो? फिर कहिएगा आप कि डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ हमको बढ़ना है, तो ऐसे में डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं बनता है ना। तो ये कंट्रीज़ थे, लाइक यूएस भी स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था, पुश कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन जो बाइडेन ने फर्दर आपको किया इन्होंने पुश। यूरोपियन यूनियन भी नहीं कर रहा था, बट दे आर लाइक पुशिंग इट टुवर्ड्स कि हाँ, वी शुड हेल्प, और ये पेटेंट वाला जो कहानी है इनको ये खत्म करना है।
तो अब ये तो हो गया इस टॉपिक का फिलोसॉफिकल पार्ट जो आपको जानना ज़रूरी था प्रायर रीडिंग और गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ डिटेल्स। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, ज़रूर से पढ़ना चाहिए ये आर्टिकल और आपको लिंक करना चाहिए किससे क्लाइमेट चेंज से। और एक दूसरा टॉपिक है रशिया यूक्रेन क्राइसिस और फिर आपका आता है MC-12 कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो ये सब कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आपको वर्ल्ड ऑर्डर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कि ये किस तरह का आप वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं। एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और बहुत हाई लेवल पे चेंज होता है, ठीक है? और आपका ये चीज़ भी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करिए, जो रशिया और यूक्रेन का जो ग्रीन एग्रीमेंट है व्हिच इज़ अ मिरर एग्रीमेंट बेसिकली। मिरर क्यों है? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली साइन नहीं किया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए आज के लिए। सो मिनिस्ट्रियल 12 कॉन्फ्रेंस के बारे में आते हैं। कमिंग टू द टॉपिक मिनिस्ट्रियल 12 कॉन्फ्रेंस WTO वर्ल्ड ट्रेड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है व्हिच इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ठीक है? जो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है इसमें WTO जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इससे ऊपर कोई नहीं है। ऊपर ही है ये। सेकंड थिंग द कॉन्फ्रेंस इज यूजुअली हेल्ड एवरी 2 इयर्स ये भी बाइएनियल है। जैसे आपका एथलेटिक्स वाला जो स्पोर्ट्स था, नीरज चोपड़ा को जिसमें सिल्वर मिला है और अंजू जॉर्ज को उसमें 2003 में जो पेरिस का जो हुआ था शो उसमें उनको लाइक ब्रॉन्ज मिला था और वो भी बाइएनियल था और ये भी आपका कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बाइएनियल ही होता है, ठीक है? सो फार अभी तक 11 हो चुका है ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि अभी अगर 12th हो रहा है तो पहले 11 हो चुके होंगे। हर एक कॉन्फ्रेंस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। WTO को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था, वैसे ही इस कॉन्फ्रेंस का भी ऑब्जेक्टिव है। We'll get into the detail of WTO soon after this topic. लाइक फर्स्ट ये था सेटल ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स जो भी मेंबर्स के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है जैसे अभी क्या था ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ ड्रग्स वो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर पे एक ट्रेड डिस्प्यूट है ठीक है उसको सेटल करो अब देखो ट्रेड डिस्प्यूट ना ये सब बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्यूट्स होती है जो कि फोन पे सॉल्व नहीं होता अब ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी फोन करके कहेंगे पुतिन साहब को कि सर ऐसा कर दो फिर उनको कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप एक बॉडी बनाई जाती है, तो एक बॉडी इन्होंने बनाया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इस बॉडी के ही थ्रू जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के वो आते हैं एंड दे डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली द डिस्प्यूट इज एंड हाउ टू रिजॉल्व ठीक है? तो ये पहला है सेटल ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स। सेकंड वन इज दैट analyze trade policies of member countries such as anti-dumping measures, subsidies, market access, agriculture policies and etc. लाइक कि देखो अब जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर में फूड सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइक आपको पढ़ना चाहिए फूड क्राइसिस क्या होता है ठीक है और इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या मीजर्स लिए हुए हैं ये जो आपका रशिया यूक्रेन का जो एग्रीमेंट है वो भी फूड सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए लिया गया है क्योंकि जो यूक्रेन है यूक्रेन और रशिया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं जब आपका वीट एक्सपोर्ट की बात आती है ठीक है और आपका जब फर्टिलाइजर्स की बात आती है क्योंकि यहाँ पर ना एक सी है सी ऑफ एज़ो और ब्लैक सी, जो कि आपका जो ट्रेड होता है, व्हीट ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होता है और इनका रेलवे नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इस टाइप की बॉडीज़ बनाई जाती हैं ताकि कोई भी कंट्री अगर कोई पॉलिसी बना रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उस वर्ल्ड ऑर्डर को टैकल करने के लिए, उस इफ़ेक्ट को टैकल करने के लिए सबको एक साथ बुलाया जाता है कि हाँ भाई चलो आओ बैठो, शुरू करते हैं पंचायत, सबको बुलाओ, सभी स्टेट्स को बुलाओ। तो इसमें जाते हैं सब और डिस्कस होता है। सेकंड थिंग इज़ दैट इस टॉपिक में है आपके लिए ये वाला पार्ट। इट इज़ बीइंग हेल्ड WTO हेडक्वार्टर हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के बारे में आप जानते हैं। तो ये तो जान लिया कि भाई इसके बारे में कि क्या-क्या होता है ये मिनिस्ट्रियल 12 कॉन्फ्रेंस 11th हुआ था पहले, ठीक है? अभी एक चीज़ और जान लेते हैं इसके बारे में कि अराउंड 50 सिविल सोसाइटीज़ हैं, 22 कंट्रीज़ से आते हैं ये लोग और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसके एग्ज़ाम्पल्स आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, यू कैन रेफर दैट इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपाइंस, पाकिस्तान, घना, पैसिफिक आइलैंड एंड सो ऑन यूएस है, यूके है, बेसिकली जो WTO के मेंबर स्टेट्स हैं ना, वो आते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं जिनको है कि यस दे आर सिविल सोसाइटीज़, दे आर डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन हू कंसीडर देमसेल्फ एज़ तो वो आते हैं इसमें और कोई भी इश्यू होता है वो रखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके क्लैट और एलिट हो गया, डीयू ले लीजिए आप, एमएच हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है, यू शुड बी अवेयर व्हाट इज़ WTO। तो WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके बाद और जाना जाए तो WTO से WTO आया था आपका 1 जैन
1995 बाय माराखीश एग्रीमेंट, MARA, ये माराखीश, ठीक है। माराखीश एग्रीमेंट हुआ था आपका, ठीक है। माराखीश एग्रीमेंट, और एक राउंड हुआ था जिसको हम कहते हैं उरुग्वे राउंड, ठीक है। काफ़ी साल तक चला था ये राउंड, 1994 में आके कंक्लूड हुआ ये राउंड, ठीक है। 1994 में जब ये राउंड कंक्लूड हुआ आपका, तो ये 1995 1 जनवरी को आपका डब्ल्यूटीओ ओरिजिन में आया। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूटीओ ओरिजिन का आ गया, ठीक है, अच्छी बात है 1995 में। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अभी तक तो आ गया होगा आई गेस कि सर डब्ल्यूटीओ ओरिजिन तो इससे पहले कुछ था नहीं, मतलब ऐसे ही ट्रेड हो रहा था। नहीं, नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं हो रहा। तब था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, ये आपको याद रखना है। GATT इससे पहले था। डब्ल्यूटीओ के अभी 164 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 1995 में आया था माराकीश एग्रीमेंट के थ्रू फ्रॉम द उरुग्वे राउंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और इससे पहले ये गैट था, ठीक है। गैट का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग। यू शुड बी अवेयर व्हाट इज गैट, ठीक है। एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दे कैन बी इजीली आस्क्ड कि अर्लियर डब्ल्यूटीओ क्या था, तो गैट, ठीक है। तो अभी चीफ कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी फोटो भी आई है, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इनकी फोटो आई है चीफ की, नगोजो ओकोंजो इवेला, ठीक है। ये नाइजीरियन वुमन है, जो कि है इसमें डब्ल्यूटीओ में, इज द फर्स्ट नाइजीरियन वुमन टू बी गेट एट दिस पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिए, नगोजो ओकोंजो, ठीक है, नगोजो ओकोंजो है। तो इनका नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये चीफ है डब्ल्यूटीओ की, एंड इट इज very nice to see that woman at the post. And recently India also has elected president as women president, and the first tribal woman president, and see किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं पता होना चाहिए आपको। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स होता है, अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो भी आईपी रिलेटेड इश्यूज होती है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो वो इसमें डील होता है, लेकिन वो वर्ल्ड ऑर्डर पे डील होता है, ठीक है। जब भी आप भी लॉ स्कूल में जाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो मौका मिलेगा आईपी पढ़ने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अभी ट्रिप्स पढ़ लो, बाकी बाद में आईपी पढ़ेंगे। तो ट्रिप्स में क्या है, इट इज डिफाइंड एज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। और ये भी माराकीश मोरक्को में है, और इफेक्टिव ये हुआ था 1 जनवरी 1995 से। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ। बताया था मैंने, जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं सभी इसमें आएंगे। इट इज पार्ट एंड पार्सल, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डब्ल्यूटीओ। सो यहीं पे हमारा द हिंदू का आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो कंक्लूड हुआ। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स था, आप ज़रूर से ज़रूर आर्टिकल्स को पढ़िएगा एंड एनालिसिस करिएगा, उनका एनालिसिस सुनिएगा एंड नोट मेकिंग ज़रूर करिएगा। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़। नहीं तो लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम पे क्या हुआ ना, कुछ नहीं मिलेगा एक जगह। अभी से रहेगा, और आप ट्राई करिए कि डेट सब्जेक्ट वाइज़ बना सके तो बनाइए, वो बेटर रहेगा। और नहीं तो अगर आप डेट वाइज़ भी बनाते हैं, दैट विल आल्सो गुड, और इम्पोर्टेंट डेट्स रिमेंबर रखिएगा। लाइक मैंने क्वेश्चन आयर में भी इंक्लूड किया है, एज आई सेड यू अर्लियर, कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू, और ये आपका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, व्हेन डिड द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड इंट्रोड्यूस्ड? लग रहा हो कहाँ से पूछ दिया रे। तो आज का द हिंदू पढ़िएगा, उसमें जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आफ्टर जो टॉपिक आता है आपका, एंड जो उसका एनालिसिस का टॉपिक है, उसमें उस पेज के सबसे लास्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा स्पोर्ट्स कोड के रिगार्डिंग। तो आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द स्पोर्ट्स कोड, बट यू शुड बी अवेयर कि ये कब आया था ये कोड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैंने रेफरेंस दे दिया है आपको, द हिंदू में जाके पढ़िएगा, मिलेगा आपको, आज के ही द हिंदू में है। Second question is that the total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and Rajya Sabha, जानना जरूरी है ना, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है। मिल गया कॉन्टेक्स्ट, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है तो पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेशनल फ्लैग डे। अभी रिसेंटली इसी महीने में हम लोगों ने नेशनल फ्लैग डे मनाया है, ठीक है। एंड हु डिजाइन द इंडियन फ्लैग, आपको पता होना चाहिए इंडियन फ्लैग। मोर ओवर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़िए जा करके कि जो ट्राई कलर का जो इम्पोर्टेंस होता है ईच एंड एवरी कलर्स का, एंड उसका आपको इम्पोर्टेंस का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज, व्हाई दिस कलर हैज बीन चूजन, व्हाई
दिस व्हाइट कलर और व्हाई दिस ग्रीन कलर हैज़ बीन चूज़न, ठीक है? ये पता होना चाहिए। और नेशनल फ्लैग डे कब होता है एंड हू हैज़ डिज़ाइन्ड, ठीक है? Fourth question is that Burhanpur, which was declared as the first Har Ghar Jal certified district in the country, in which state it is? ये आपका प्लस क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम हिंदू कि हर घर जल ये किस स्टेट में हुआ है? इस स्टेट का नाम मैंने लिया है इसी सेशन में, ठीक है? तो आप देखिएगा सेशन में आप मिलेगा आपको तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसी सेशन में तो बोला था सर ने। कि हाँ, इसी सेक्शन में है इसका आंसर। आंसर इसी सेशन में है मतलब स्टेट का नाम इसी सेशन में है, ठीक है? बट आप देखिएगा जा करके। उसके बाद विच इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड ईएफआईआर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी इजीली बी आस्क्ड बिकॉज़ ईएफआईआर है और लॉ से वैसे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चल रही है। बेल रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है आपका बेल रिफॉर्म से रिलेटेड कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज होता है, ठीक है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी है ईएफआईआर सिस्टम क्या होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन आयर कंप्लीट, ठीक है? तो जुड़े रहिए और कंप्लीटली न्यूज़ एनालिसिस के लिए लुक एट आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सॉल्व द क्वेश्चन, इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड डू मेक नोट्स। थैंक यू।